हाउ द क्वेश्चंस ऑन इंटरनल सिक्योरिटी यूजुअली कम्स। हर टॉपिक का आपके पास 1 पेजर नोट्स होना चाहिए। हर टॉपिक का आपके पास एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एज टू what this topic is, what are the things that you need to cover in this topic. Border area management में एक चीज़ which is very important for you to understand is that जिनके साथ हमारा physical boundary है and they are also in the news, वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। Now अभी के टाइम पे you can also talk about the very recent and the very tragic पहलगाम attack. Okay, you can also talk about that. You can also mention Operation Sindoor, but please कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज करिएगा, कहीं भी मत चिपका दीजिएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन में हर कोई एवरेज आंसर लिख रहा है। इजी क्वेश्चन में एवरीवन इज राइटिंग गुड आंसर्स। एटलीस्ट द ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग वेल, they are writing beautiful answers. You also have to write beautiful answers. Hello everyone. Today we will be covering another topic in our GS3, and that is the border area management, which is a subtopic in our internal security. Okay. Now, before we begin with the PYQs related to border area management, a little about how the questions on internal security usually comes. ठीक है, अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस अपने GS3 में देखिए तो इट टॉक्स अबाउट बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट, इट टॉक्स अबाउट left-wing extremism, it talks about organized crimes, it talks about cyber crimes, and lot of things have been mentioned there. So we will go topic wise. Okay, and again हर टॉपिक का आपके पास 1 पेजर नोट्स होना चाहिए। हर टॉपिक का आपके पास एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एज टू what this topic is, what are the things that you need to cover in this topic, and the recent developments or recent news related to that topic. Now, border area management is something which is always in news. Considering the geopolitical and the geographical location that our country has, and since we cannot choose our neighbors, and the issues we have with our neighbors, or the good relations we have with our neighbors, and whatever the current things have been going on in our neighboring countries, or in the countries which we call them as allies, or the countries which we have declared as enemy states, whatever it is. तो दो चीजें हैं। फर्स्ट जो आपका GS2 कवर करता है, दैट इज योर इंटरनेशनल रिलेशंस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इंटरनल सिक्योरिटी में हम मोस्टली अपने आप को कंस्ट्रेन करेंगे बॉर्डर कंट्रीज में, और वो कंट्रीज जिसके साथ हम मैरिटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं। ऑफ कोर्स इन योर आंसर्स यू कैन ऑलवेज मेंशन कंट्रीज जो हमारे साथ बॉर्डर नहीं भी शेयर करती हैं, फिर भी इफ देयर इज अ सिक्योरिटी थ्रेट, or if they are doing something to help us to curb the security menace in our country, you can always mention that. But of course in border area management we will mostly be covering, as the name goes, we will mostly be covering the countries जिनके साथ हम border share करते हैं. Now, border area management में एक चीज which is very important for you to understand is that जिनके साथ हमारा physical boundary है and they are also in the news, वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। उनके साथ हमारी जुड़ी हुई हिस्ट्री, वाई इशू, क्यों इशू है, if there is any, and what has happened in the past that we have such an issue. Did we in any time in the past have good issues with them? Okay, what is India's stand on our bordering neighbor with whom the issue is being discussed, and what are the steps that our government is taking to make sure that this issue does not persist. ये सारी चीजें आपकी broad headings में आ जाती हैं। We'll go one by one and you'll understand कि how we approach questions like this, and how you will make 1 pager notes or how you will make your notes when it comes to border area countries. So we will first start with the very recent question of 2024, wherein it has talked about the border issue with China and Pakistan. Now keep in mind, China and Pakistan के साथ border issues हमेशा न्यूज में रहते हैं। ऐसा कोई भी ईयर नहीं होगा जब ये न्यूज में नहीं है।
तो दिस इज अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, समथिंग जो आप जिसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड होना होगा. ये क्वेश्चन देख के आप ये नहीं बोल सकते कि ये इन्होंने कहाँ से पूछ दिया. आई अंडरस्टैंड देयर आर फ्यू क्वेश्चंस इन GS3 विच माइट कम आउट एज कि अरे ये कहाँ से पूछ दिया, या यू हैव नॉट हर्ड अबाउट इट, और आपको कुछ बहुत ही रैंडम सा पता है, बहुत छोटा छोटा कुछ पता है और आपने कुछ एवरेज आंसर लिख दिया. बट इन क्वेश्चंस where you talk about the border issues with China and Pakistan, you don't have that excuse, क्योंकि ये हमेशा न्यूज में है. इनके साथ क्या इशू चल रहा है, इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं, these are the things, it is always there in the news and you will have to be very very careful in news के साथ कि आपको समझना है, पढ़ना है, and then you have to put it in your answers. Now, so let's move ahead. So first question is that India has a long and troubled border with China and Pakistan, fraught with contentious issues. Examine the conflicting issues, okay, and security challenges. So this is part 1. This is part 2. Along the border, also give out the development being undertaken in these areas under the Border Area Development Program and Border Infrastructure and Management Scheme. Now, for you to attempt this question, पहले तो आपको फर्स्ट पार्ट मालूम होना चाहिए, which is fairly easy. Okay, the first part of this question is easy. Second part is a little tough. Why? Because if you are not aware of these two programs, तो आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. एंड कंसिडर कि ये एक 15 मार्कर क्वेश्चन है एंड आपको अपना मेंस का पेपर ऐसे स्ट्रेटेजाइज करना है कि यू ट्राई टू नॉट लीव आउट अ 15 मार्कर क्वेश्चन until unless आपकी हालत ऐसी हो गई है that you absolutely do not know anything about the question, you have never heard what the question is asking, do not leave out on the 15 marker question. आपको 10 मार्कर क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है. ट्राई टू कंप्लीट ऑल द आंसर्स, बट प्लीज ट्राई टू कंप्लीट ऑल योर 15 मार्कर क्वेश्चंस. मोर द मार्क्स, मोर द चांसेस ऑफ यू गेटिंग मार्क्स ज्यादा मिलेगा. 15 मार्क्स के क्वेश्चन में यू हैव अ स्कोप ऑफ स्कोरिंग मोर देन अ 10 मार्कर क्वेश्चन, राइट? सो ट्राई नॉट टू लीव आउट अ 15 मार्कर क्वेश्चन. ओके, सो तो अगर आपको इन दोनों के बारे में नहीं पता है तो इट विल get a little challenging for you to answer the second part of this question. Okay, but हम ये कैसे ensure करेंगे कि हमें ये मालूम है? We will keep ourselves updated through the burning issues, through the burning issues, through the smash PYQs notes, and through the smash internal security ka notes, and you will see that we have a mention of these things, and also we have a mention of border area development को लेके अगर और भी कुछ न्यूज में है, it has been mentioned there. Okay, so let's start now. जैसे इकोनॉमिक्स में किया था, यहाँ भी we will start with a recent event. Okay, we can do that, wherein we talk about first the 2020 Galwan Valley clashes with China, okay, and then cross border terrorism from Pakistan. Now, abhi ke time pe you can also talk about the very recent and the very tragic Pahalgam attack. Okay, you can also talk about that. You can also mention Operation Sindoor, but please कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज करिएगा, कहीं भी मत चिपका दीजिएगा. इट्स अ सेंसिटिव मिशन, इट्स अ सेंसिटिव इशू. अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी ऑफ दैट थिंग एंड यूज इट इन अ appropriate way in your answer. Okay, so this is the way you start your border management, area management questions, wherein you talk about any recent event. Okay, you can also talk about how certain places in Arunachal Pradesh have been claimed by China as their own, and India stands its ground as to they are our place and we have a sovereign right over them. You can also mention issues like that, your choice, but it should be relevant and you must understand the sensitivity of the situation and use it appropriately. Okay, so what has this done? This has highlighted the need for strong border management and holistic development. Okay, ठीक है, आपने recent event बताया and then एक लाइन में ब्रीफली आपने बताया कि इनके वजह से हो क्या रहा है. ओके, नाउ सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है यहाँ पे, यू कैन सी वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रबल्ड बॉर्डर्स विद चाइना एंड पाकिस्तान. सो हम
keeping with the trend, and we will first address the issues with China. Okay, so India China border के बारे में हम पहले बात करेंगे, and again understand the importance of diagram in this question. Okay, so you can always make a diagram in the side. Of course आपके पेज में जितने स्पेस होगा स्टार्टिंग में छोटा सा एक मैप बनाइए, एंड यू कैन ऑलवेज हाईलाइट द बॉर्डर एरियाज जहां पे इश्यूज चल रहा है, ठीक है. एंड एक ही मैप बनाइए. यू कैन मेक वन मैप ऑल्सो, और यू कैन मेक अनदर मैप ऑल्सो वेर यू कैन हाईलाइट फर्स्ट कि चाइना के साथ क्या इशू है, एंड दूसरे वाले में यू कैन डू पाकिस्तान के साथ, और यू कैन जस्ट मेक वन गुड मैप एंड हाईलाइट द एरियाज जहां पे हमें हमारे साथ बॉर्डर इश्यूज हो रहे हैं. दैट विल ऑल्सो डू योर वर्क. ओके, सो नाउ व्हाट आर द इंडिया चाइना बॉर्डर का इश्यूज क्या क्या है. उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि कितना किलोमीटर लॉन्ग डिस्प्यूटेड बॉर्डर है. नाउ somebody will say कि this is too much data. No, this is not too much data. This is the kind of data you should know. Okay, now there is a difference between डेटा में भी आप क्या कौन सा डेटा याद कर रहे हो एंड कौन सा डेटा नहीं याद कर रहे हो होल्ड्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस. Get into the habit of understanding the data you need to remember and data which you do not need to remember. Considering that a border dispute issue is always in the news with China, you must know the data as to what and how long is the disputed border between us and China and between us and Pakistan. ये आपको पता होना चाहिए. Okay, so and what it is called, it is called as line of actual control. Nothing I have mentioned here जो आपको नहीं पता होगा, या अगर I can understand कि maybe this is a number most of you आपको या तो याद नहीं होगा या आपको वो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, but please remember this from next time. And now then we will talk about the issues that is going on. First of all, that it is a undemarcated and differing perceptions of LAC. हम किसको LAC बुलाते हैं, चाइना किसको LAC बुलाती है, इन चीजों में अंतर है. आई थिंक दिस इज समथिंग यू ऑल हैव बीन सीइंग इन द न्यूज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, है ना. Use of example here again becomes important. Then there is a Chinese infrastructure build up near the border. Of course every one of us know about this. News में रहता है हमेशा कि चाइना भी ऐसे कर रहा है, China is doing something about making, there is a Chinese infrastructure build up near border. Okay, then there is aggression in Arunachal Pradesh. Okay, then where you can talk, just now I mentioned that how China is renaming places in Arunachal Pradesh. This is also another example where you can use it in your intro also, and you can use it in your body also, how there is infrastructure build up. Then you can also talk about the salami slicing strategy. Now giving examples of Despang Plain and Demchok areas. Now understand this, salami slicing strategy is something जो आपने अपने international relations में भी पढ़ा होगा. You have to understand that even though the subjects in your GS papers are different, some of the topics might and they do overlap. So you can, in your GS paper, you can always do something which is called कि आप दूसरे का knowledge दूसरी जगह चिपकाओ. So you can mention the salami slicing strategy also कि चाइना उसमें क्या कर रहा है, there is an incremental encroachment है वहाँ पे without any full blown conflict. Okay, you must know this word, you must know what is, why this is called so, और कौन सी कंट्री ऐसा कर रही है और कैसे कर रही है. तो इफ यू रिमेंबर दिस, ये आप अपने इंटरनेशनल रिलेशन में भी ये यूज कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट में तो यूज बिल्कुल कर सकते हो. एंड देन देयर इज इशू ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट डिस्पाइट टॉक्स. डी एस्केलेशन की बात हो रही है, फिर भी समटाइम्स द टॉक्स don't give the result as we expect. And then of course there is cyber and surveillance threats. These are the things, these are the points or issues ये आपको मालूम होना चाहिए. This is totally coming from your newspapers and your basic understanding of
आवर रिलेशंस विथ आवर बॉर्डरिंग कंट्रीज, ये पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए. ओके, यू हैव नो एक्सक्यूज व्हाटसोएवर कि ये मुझे नहीं मालूम है. दिस इज अ इजी क्वेश्चन, यू हैव टू स्कोर इन इजी क्वेश्चन. दीज आर द क्वेश्चंस जिसमें आप मार्क्स छीन के लाते हो, है ना. यू डिफिकल्ट क्वेश्चन में हर कोई एवरेज आंसर लिख रहा है. अच्छे इजी क्वेश्चन में एवरीवन इज राइटिंग गुड आंसर्स. At least the of your competitors who have been preparing well, they are writing beautiful answers. You also have to write beautiful answers. These are the questions where you snatch your marks. Okay, then moving ahead to the second part, which is the India Pakistan border and the issues that we have with them. And again, you see here we talk about the long border which we have with Pakistan. We talk about LOC, we talk about international border and major challenges that it includes. Now, again, you should know the challenges जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है, which is cross border terrorism, ceasefire violations and heavy shelling, smuggling via drones and tunnels, radicalization in border areas, illegal border crossing and human trafficking, denial of consular access and fishermen arrests. Okay, now ये आपको again you should know this is an easy question. Also try to justify these statements with examples. Okay, wherever you can. हमेशा recent issue को दिमाग में रखिए, हमेशा be updated with what is going on with that country and use and write those issues. These are going to fetch you marks. Okay, now coming to the second part of the question where we are talking about border development and management initiatives. इसमें again दो part है, एक तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और दूसरा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट स्कीम. और आपको इन दोनों को अलग अलग एड्रेस करना है और इनका अलग अलग आपको बताना है कि की फीचर्स और प्रोग्रेस क्या है. उससे पहले यू हैव टू टेल देम व्हाट दीज टू प्रोग्राम्स आर. ओके, सो if you talk about border area development program, तो what is इनका objective क्या है? इसका objective is to ensure socio-economic development and security integration of people in remote border villages and coverage इसका 460 border blocks across 17 states है. आप ये डेटा अगर नहीं भी मेंशन करोगे तो इट्स फाइन. इट इज पॉसिबल दैट आपको एग्जाम में ये डेटा दिमाग में ना आए, but if this is something which is going in the news in the past 1 year, I think you should be aware of at least the number of states where it is being taken place. Okay, if not the border blocks. अगर ये याद रह जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट स्टेट्स दिमाग में रखिए कि कितना है. कोई भी एक डेटा भी मेंशन कर दीजिएगा तो चलेगा, है ना. एंड देन यू कैन talk about the key features and examples. Okay, wherein they are talking about the infrastructure development, skill development, community participation, vibrant village program. Now vibrant village program is something which is ऐसे भी आपके लिए बहुत important है. When I was preparing for my GS3, I have seen this program काफी ज़्यादा news में. Okay, so go and read up more about vibrant village program. apart from that इन दोनों programs के भी बारे में पढ़िए. हो सकता है इस साल के मेंस में you might not get a direct question from them, but you might, अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आप इनमें से टॉपिक उठा के किसी दूसरे इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन में लगा सकते हैं. there might come a question where you could use them. Okay, and then your second one is the border infrastructure and management scheme which is implemented by the Ministry of Home Affairs. And इनका काम क्या है? जहाँ पे ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये फिजिकल और सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स. एंड इनका फीचर्स, what are the key features? The key features are smart fencing, border roads and bridges, border outpost, integrated check post, है ना. and what which state में ये हो रहा है, एग्जाम्पल्स के साथ उनको बताइए कि ओके व्हाट इज हैपनिंग. सो जम्मू एंड कश्मीर में संबा एंड कठुआ सेक्टर्स में स्मार्ट फेंसिंग किया गया है. बॉर्डर रोड्स एंड ब्रिजेस में स्ट्रैटेजिक रोड बनाई गई है फ्रॉम दारबुक टू दौलत बेग ओल्डी इन लद्दाख. एग्जाम्पल्स, ओके, मेंशन एग्जाम्पल्स जहाँ पे इन स्कीम्स के थ्रू किन स्टेट्स में या किस जगह पे
कुछ काम हो रहा है, इफ यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल ऑफ इट, इफ यू देन एटलीस्ट मेंशन 1 or 2 एग्जाम्पल्स, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. बट प्लीज हैव एक हैबिट बनाइए कि आप एग्जाम्पल्स अपने आंसर्स में लिखिए, एज मेनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन. राइट हेडिंग, उसका सब हेडिंग, एक लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन एंड एक लाइन में एग्जाम्पल, बस इतना काफी होता है. इससे बहुत ज्यादा नहीं करना होता है. बट अगेन आई अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस. अगर सारे पॉइंट्स में नहीं तो एटलीस्ट 1-2 पॉइंट में इफ यू कैन मेंशन द एग्जाम्पल, दैट विल बी गुड. And then you conclude. How do you conclude? You conclude by giving a holistic summary of your answer, as in where we talk about the multidimensional threat of conflict which we have with these two countries, and it just not only requires military readiness, but it also requires civilian integration and infrastructure डेवलपमेंट. इस तरह से भी आप कंक्लूड कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो मेंशन सम स्कीम्स जो इन दोनों कंट्री को लेकर रेलेवेंट है, या कुछ भी. यू कैन इफ यू नो एनी कोट जो आपको मालूम हो कि इन कंट्री से रिलेटेड किसी ने कुछ बोला हो, यू कैन ऑल्सो कंक्लूड इट दैट वे. ओके, नाउ मूविंग अहेड, द सेकंड क्वेश्चन. दिस इज अ 2023 का क्वेश्चन है ये, वेयर दे आर आस्किंग यू व्हाट आर द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस being faced by India. इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज अब आपसे पूछा गया है. नाउ माइंड यू, यहाँ पे डायरेक्टली आपसे बॉर्डर एरिया के बारे में दे हैव नॉट आस्क्ड. ओके, यहाँ पे दे आर आस्किंग यू द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय इंडिया. गिव आउट द रोल ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज टास्क्ड टू काउंटर सच थ्रेट्स. नाउ इस क्वेश्चन में आपको कैसे इसको अप्रोच करना है. पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय इंडिया है क्या. नाउ अगेन ये क्वेश्चन भी आपका 15 मार्कर है, एंड अंडरस्टैंड दैट इस क्वेश्चन का पहला पार्ट अगेन इज इजी. ये तो आपके डायरेक्ट सिलेबस में से ही उठा दिया. You cannot say you don't know the internal security challenges in your country when you are attempting a question on internal security, है ना. So this is a easy part. इस क्वेश्चन का ये एक easy part है. इसमें you have to capture as many marks as you can. ठीक है, and then आपको बताना है रोल. किनका रोल? सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज tasked to counter such threats. Okay, the second part is also easy. बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि when you will read अपना इंटरनल सिक्योरिटी का, आप जब सिलेबस पढ़ते हो, आप उसमें थ्योरीज पढ़ते हो उसकी, आप उसमें नॉलेज गैदर करते हो, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी अ सेक्शन वेयर दे विल टीच यू अबाउट सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज. उनका रोल क्या है, कौन सी होती है, ये सब आपको पता होगा. सो दिस इज एन ईजी क्वेश्चन एंड यू हैव टू स्कोर 7.5 से 8 के बीच में. ये तो आपका एकदम बेयर मिनिमम टारगेट होना चाहिए इस क्वेश्चन में. 9 या 10 ऐसा है कि आई एम नॉट श्योर इफ किसी को मिलता होगा, क्योंकि आई डोंट नो. बट अगर मिल रहा है देन यू अंडरस्टैंड द लेवल एंड द हाउ ब्यूटिफुल दैट पर्सन मस्ट हैव रिटन दैट आंसर. बट इतना तो आप मिनिमम टारगेट करके चलिए कि इस क्वेश्चन में इससे कम नहीं आना चाहिए, है ना. सो स्टार्ट विथ एन इंट्रो, वेयर बेसिक इंट्रो आप स्टार्ट कर सकते हो कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स है, क्यों है, सोशियो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस के वजह से है, क्रॉस बॉर्डर इंटरफेरेंस है, आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन है ना, और सेंट्रल एजेंसी का भी काम है इसमें इनको स्टेबलाइज करने का. So the first part that we will address is the internal security challenges which is faced by India. तो of course पहला आप टेररिज्म मेंशन करते हो. You have to mention terrorism. It's an ongoing issue. So आपका ये पहला पॉइंट होना चाहिए एग्जाम्पल्स के साथ कि इंटरनल सिक्योरिटी में टेररिज्म की वजह से कहाँ कहाँ इशू हो रहा है. सेकेंड आपका होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, अगेन एन ऑनगोइंग इशू. रिसेंटली अभी हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने 2026 का एजेंडा भी सेट किया है, वेयर ही हैज टोल्ड कि वील ट्राई टू फिनिश लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बाय 2026. तो ये उस वजह से भी न्यूज में आ जाता है, और आपको ऐसे भी मालूम होना चाहिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे अलग से भी क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको अलग से पढ़ना भी है. तो यू शुड नो द स्टेट्स
विच आर अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सब आपको पता होना चाहिए. खैर उतना डिटेल आपको अभी यहाँ नहीं लिखना है, बट if you are mentioning this point, only mentioning this point won't do. You will have to give some context and data. तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ. And then there is insurgency in the northeast. Okay, of course, the whole Manipur issue and the whole Naga issue. There is problems around that, and work is also being done to solve that problem. So mentioning it again becomes very important. Now, the other issue is that there is communal and religious extremism. Okay, then there are cyber security threats. communal और religious extremism है, cyber security के threat है. एग्जाम्पल मेंशन करिए कि कहाँ कब इंटरनल सिक्योरिटी इफेक्ट हुई है साइबर थ्रेट के वजह से. नारकोटिक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का इशू है, अगेन 2024 के एग्जाम्पल. नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में आपको बोला है कि GS3 is a heavily current affairs dominated paper. Why is it so? आप देख रहे हो, the examples have been picked up from the recent events. 2022 का है, 2024 का है ना. ये सब आपको कैसे पता चलेगा? सारी चीजें you won't be able to gather from the books. You will have to refer to the newspapers and the current affairs, current affairs magazines. तो वहां से आपको मालूम पड़ता है कि क्या इशू चल रहा है ना. एंड यू मस्ट मेक अ हैबिट ऑफ मेंशनिंग देम इन योर आंसर्स. Then there is the issue of urban Maoism and ideological radicalization. There is a issue of illegal migration and border management. Okay, now if you see this map, यहाँ पे एक तरह से मेंशन किया गया है कि what are the potential areas जहाँ पे internal security के issues हो रहे हैं. Okay, if you see this map, यहाँ पे आप देखिए, we have this map is highlighting the issues, internal issues and the threats that the various parts of the countries are facing. If not in its whole, थोड़ा बहुत try to emulate this map in your answer. I can understand the limitations of remembering each and everything of this map, but अब इसमें से जैसे there are 8 threats and issues they have been mentioned. You can remember 4 or 5 of them and kind of highlight it in your map. It will give some edge to you from other students who don't, right? So try doing that. Okay, if it is possible for you to remember it. It's a good map और काफी अच्छे से बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ क्या इशू और थ्रेट है. तो आप उसको अगर इस इंटरनल सिक्योरिटी बताते हुए कि क्या क्या इंटरनल सिक्योरिटी में इश्यूज है, आप मैप के थ्रू भी बता दो कि कहाँ कहाँ है, दैट विल fetch you good marks. And then there is illegal migration, border management का issue, online radicalization है, money laundering and terror financing. And these are the internal issues I'm sure you all are aware of. So you have to mention them in your answers. Of course, अब सारा 10 on 10 आप नहीं लिख पाओगे. I can understand that it is a 15 marker. Even though it is a 15 marker question, you still have to stick to the word limit. तो इसमें से आप कोई 7-8 भी mention कर दीजिए examples के साथ. That will be fine. अगर आप 10 का 10 mention कर सकते हैं with summarize, with keeping in mind with the word limit and everything, go ahead, mention all 10 of them. But if it is not possible, the सबसे important वाले से start करते हुए mention any 6 or 7 points. Okay. Now, central intelligence agencies और central investigative agencies, ये 2 पार्ट हैं. सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन का, उसमें भी 2 पार्ट है, वेर इन फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी एंड सेकेंडली वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज. सो बिफोर यू टॉक अबाउट देयर रोल and how they are doing their role through examples, you must first be aware of the central intelligence and investigative agencies in our country. Again, a portion of your static part. This has nothing to do with current affairs. This is a static part. आपके कंट्री में क्या कौन सी एजेंसी है इंटरनल सिक्योरिटी के अराउंड, ये आपको मालूम होना चाहिए. सो IB के बारे में सबको मालूम है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में सबको मालूम है, NTRO है एंड मल्टी एजेंसी सेंटर है. नाउ ये दोनों हर कोई मेंशन करेगा, ये दोनों वो बच्चा मेंशन करेगा जिसने अच्छे से इसकी पढ़ाई की है कि और कौन कौन सी एजेंसीज हैं.
I used to attempt my internal security का आंसर, मैं बस यही दोनों लिखती थी क्योंकि मुझे बस यही दोनों मालूम था. It was my fault that I did not go through that whole list अच्छे से, and then I realized कि मेरे को marks नहीं ज़्यादा मिल रहे हैं because every time there is a question on investigative central intelligence agencies, मैं हमेशा इन दोनों का ही example दे रही हूँ. And when I see the model answer, I saw कि यहाँ पे तो और भी organizations हैं, right? So remember these two organizations also. ये भी हमारे intelligence agencies का part है, and they are also doing important work. Of course, you have to mention them, but someone who has had a good reading of their static portion will also mention these two. जहाँ आप सिर्फ ये दोनों mention करके आओगे, वो बच्चा चारों mention करेगा, and he or she will score more marks. That is where you snatch away marks in your mains. Then you should know the role of each of them. 2-3 लाइन का ही रोल समझिए. डोंट गो अबाउट मेमोराइजिंग पीडीएफ्स एंड पीडीएफ्स. अब जस्ट बिकॉज नाउ आई हैव सेड कि इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप रॉ के बारे में 50 पेज का पीडीएफ पढ़ने लग जाइएगा. प्लीज डोंट डू दैट. वो आपका मेन एम नहीं है. आपको उनका बेसिक रोल्स एंड फंक्शंस पता होना चाहिए. सो बेसिक रोल्स एंड फंक्शंस हर किसी का पता करके रखिए, और 1-2 एग्जाम्पल कि वो उस रोल को कैसे पूरा कर रहे हैं. सिमिलरली इन द केस ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ऑल्सो, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का नाम जान के रखिए. NIA, CBI, ED, NCB, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट. आई थिंक फर्स्ट ये सारे आप लोग दिस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के बारे में आई गेस मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर. इनके बारे में सबने सुना होगा. प्लीज पुट देम इन योर क्वेश्चंस. उनके रोल्स को समझिए एंड अगेन उनके एग्जाम्पल्स को नोट करिए. नाउ दिस इज a framework we have given you. You cannot emulate this whole thing in your answer because आपका word limit cross होने लगेगा. यहाँ हम आपको framework दे रहे हैं. Now it is your job that you go back. आप दोबारा इस question को attempt करिए, keeping in mind all the facts and knowledge that you have, and attempt it in your word limit. That is what will help you. Me standing here and telling you how to attempt the answer will only take you so far. Main काम आपका खुद का है, that you go back and attempt these questions. You have the framework, you have a model answer, उसमें से चेक करिए and then see कि आप word limit में रह के कितना अच्छा आंसर attempt कर पा रहे हो, है ना. And then talk about conclusion, okay, wherein you tell कि कैसे एक proactive, layered और intelligence led approach is the key guard for safeguarding national security. Then you can also give a little way forward here कि इंडिया से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कि what to build a resilient internal security framework, what must India do. So you can talk about how we can strengthen our inter-agency coordination, how you can अपने इंटर एजेंसी, अपने ही कंट्री की एजेंसीज में कैसे हम कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं. कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिसर्च रॉ एंड IB, or a coordination between CBI and ED. Then how we need to enhance our cyber and financial intelligence capabilities and promote community intelligence and local policing. ये आप अपने way forward में भी डाल सकते हैं. You can also go about this way that you mention the way forward and then फिर 1-2 line का conclusion देके finish your answer. This is also a good way and this is also a good way. Both way आपका दोनों चल जाएगा. Okay, now moving ahead to the third question. Now अभी हमने पहले क्वेश्चन में हमने बॉर्डर एरिया कंट्रीज के बारे में बात की, सेकंड क्वेश्चन में हमने इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात की. अब यहाँ हम बात करेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में. Now to know what are the maritime security challenges in India, आपको पहले ये पता होना चाहिए that किन कंट्रीज के साथ हमारे मैरिटाइम इश्यूज हैं. दिस इज अ बेसिक नॉलेज. आपको बेसिक्स पहले, इसीलिए हमेशा कहते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक में घुसने से पहले आपको बेसिक्स मालूम होना चाहिए. सो मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस किन कंट्रीज के साथ हैं आपको ये पता होना चाहिए, and then you can answer the question as to what are those challenges. Okay,
दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन. सो माइंड यू हमें वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स की. तो इवन दो ये क्वेश्चन में स्कोप है कि ये बहुत लंबा जा सकता है, बट वी हैव टू कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड टू द पॉइंट. So, and then the second part is we have to discuss the organizational, technical and procedural initiatives taken to improve the maritime security. So, kaise, how we will go about answering this question? First, in the first part, we will talk about the maritime security challenges. Second part mein pehle we will talk about the organizational, then the technical and then the procedural initiatives. Okay? प्लीज अपने आंसर को इस तरह से मत अटेम्प्ट करिए कि आपने इनिशिएटिव्स लिख दिया एंड देन अपने 4-5 पॉइंट मेंशन कर दिए जो इन तीनों का मिला के कुछ खिचड़ी है. यू विल गेट मार्क्स बट अगेन यू विल गेट लेस मार्क्स, है ना. तो इनिशिएटिव्स वाले सेक्शन को हमेशा 3 पार्ट में अटेम्प्ट करेंगे हम. ऑर्गेनाइजेशनल पहले बताएंगे, उसके बाद उसमें 2-3 पॉइंट्स हम अपने देंगे. सेकंड टेक्निकल उसके बाद हम बताएंगे एंड थर्ड फिर हम बताएंगे प्रोसीजरल. और हर किसी में 2 से 3 पॉइंट. बिकॉज इट इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन तो आप 6-7 पॉइंट्स हर किसी में नहीं लिख सकते. यू विल क्रॉस द वर्ड लिमिट बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू अटेम्प्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. बट हर पॉइंट के अंदर 2 से 3 पॉइंट एंड विथ एन एग्जाम्पल. ये प्रैक्टिस से आएगा. अभी आपको फील होगा कि ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, इतना सारी चीजें नहीं लिखा जा सकता है. आई ऑल्सो यूज टू थिंक लाइक दैट एंड ट्रस्ट मी, आई यूज टू राइट हॉरिबल आंसर्स एंड माई वर्ड लिमिट ऑलवेज यूज टू गेट क्रॉस्ड. I am a humanities student and the most challenging part for me in answer writing was to restrict my word limit. क्योंकि हाथ खोल के लिखने की आदत थी मुझे, the semester exams that I used to give. So keeping your word limit in check was a big challenge for me, and I could do it only because of practice, and you will also be able to do it if you are in a habit of writing your answers continuously. Not continuously, as in regularly. Okay, so अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम पहले बात करेंगे मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हमारी कंट्री में हैं. ठीक है, तो हमें पता है कि मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस कंट्री में क्या क्या है. एक तो सी बॉर्न टेररिज्म है. ठीक है, ये कैसे हम बताएंगे उनको. द वेरी अनफॉर्चुनेट एंड ट्रैजिक 26/11 मुंबई अटैक्स के थ्रू. सेकेंडली पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी के बारे में मेंशन करेंगे हम. ठीक है, इसमें हम बताएंगे कि कैसे मार्च 2024 में अरेबियन सी में इंडियन नेवी की INS सुमित्रा ने 19 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया था फ्रॉम सोमाली पायरेट्स. ये न्यूज में था. आई ऑल्सो रिमेंबर दिस बीइंग इन द न्यूज. give them in the example, है ना. Then there is a issue of smuggling and trafficking. Then there is illegal fishing. Then there is maritime boundary issues. Chinese naval expansion है, natural disasters and climate है. Maritime boundary issues, Sir Creek dispute with Pakistan, ये काफी दिन से चल रहा है, पता होना चाहिए आपको, है ना. Then cyclone मोका 2023 में जो आया है, क्या कितना इम्पैक्ट किया है ईस्टर्न कोस्टल स्टेट को और नेवल एसेट्स को, ये न्यूज में भी था, ये आपको पता होना चाहिए. नेचुरल डिजास्टर्स एंड क्लाइमेट इज अनदर इशू, डू नॉट मिस इट आउट. सिर्फ सिक्योरिटी, सी इफ यू सी द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को देखिए तो दे आर आस्किंग यू कि मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इंडिया में क्या है. नाउ अगर आप इसमें नेचुरल डिजास्टर्स एंड क्लाइमेट मेंशन कर रहे हो तो दिस शुड बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी उससे कैसे कैसे हैम्पर हो रही है. कीप इन माइंड कि कुछ भी आप अगर मेंशन कर रहे हो यहाँ पे मैरिटाइम रिलेटेड इशू को, वो हमेशा सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड यू. ठीक है, एंड देन यू विल टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव्स. ओके, नाउ अब अगेन हमने कहा कि हम 3 तरह से इसको अटेम्प्ट करें, 3 पार्ट्स में एड्रेस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल एंड प्रोसीजरल. सो दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव्स. ओके, इंडियन नेवी के क्या इनिशिएटिव्स हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के क्या इनिशिएटिव हैं, जॉइंट ऑपरेशन सेंटर्स के क्या इनिशिएटिव्स हैं, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर IOR, इनके क्या इनिशिएटिव्स हैं, है ना. दिस शुड बी योर
ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव्स का पार्ट, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड. नाउ इसमें सिंस यू हैव टू अटेम्प्ट दिस आंसर कीपिंग द वर्ड लिमिट इन माइंड, तो यू नो मेंशन, कोई 2 मेंशन कर दीजिए, है ना. देन मूविंग ऑन टू द टेक्निकल इनिशिएटिव्स, ये आपका टेक्निकल इनिशिएटिव्स हो गया, है ना. इंटीग्रेटेड कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, नेशनल कमांड, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये आपके टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गए. अगेन इसमें से कोई 1-2 मेंशन, अगेन मेंशन 1 or 2 ऑफ देम इसमें से, है ना. देन प्रोसीजरल एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स की अगर आप बात करिए तो ये आपके प्रोसीजरल एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं. मेंशन एनी 2 or 3 ऑफ देम बिकॉज इट इज अ, यू सी, अगर हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन, तो आपको वर्ड लिमिट ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. सो बिकॉज इट इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन, नॉट ऑल ऑफ देम, बट 1-2 भी अगर आप हर किसी इनिशिएटिव के अंदर मेंशन कर दीजिएगा तो दैट विल सफाइस. एंड देन दीज आर द प्रोसीजरल एंड पॉलिसी इनिशिएटिव. सागर स्कीम है, सागरमाला प्रोजेक्ट है, सागर कवच ड्रिल्स है, ये सब न्यूज में रहता है. हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इट इज इन द न्यूज. प्लीज बी अवेयर विद द न्यूज. ओके, एंड देन you can talk about the way forward that India must invest in. Okay, how, what we can do to ensure कि ये सारी चीजें कर्ब हो सके. And then you can talk about how, conclusion में you can mention कि कैसे एक comprehensive और forward looking strategy से India can secure its maritime interest. Conclude your answer like that. Okay, now next question. This is a 2020 question. Again a 15 marker, which means you have to write 250 words. 250 words का word limit है. अगर इस question को हम देखते हैं, अब इसमें, अब देखिए ये question थोड़ा specific हो गया है. Second question में क्या था, उन्होंने बस they have just asked you to mention the internal security challenges that India faces. It's a easier question, but the moment they make it specific, तो आपका आंसर भी स्पेसिफिक हो जाना चाहिए इमीडिएटली. तो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स. नाउ दे आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स अलोंग म्यांमार, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान बॉर्डर्स, इंक्लूडिंग LOC, है ना. एंड देन यू हैव टू डिस्कस द रोल प्लेड बाय वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस इन दिस रिगार्ड. ठीक है, पहले अगेन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स इन तीनों कंट्रीज के थ्रू क्या है हमारे इंडिया में, और यहाँ पे आपको LOC का भी इंक्लूड करते हुए मेंशन करना है. And then you have to talk about the role that our security forces play. And to again answer the second part of this question, you must know about the security forces in our country. Okay, so how we'll go about attempting this answer? First, we will talk about कि हम अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, समथिंग लाइक दैट, यू नो, या समथिंग ऑन द लाइन्स ऑफ हाउ अ क्रॉस बॉर्डर trans-border crimes and internal security threats from the countries like all the mentioned above, you know, have been a constant issue in the country. ऐसे start कर सकते हो, कुछ अगर data हो तो उससे start कर सकते हो, है ना. And क्योंकि यहाँ पे आपकी 3 चीजें mentioned हैं, तो आपको तीनों पार्ट अलग अलग एड्रेस करना है. डोंट मेक अ खिचड़ी इन योर आंसर वेयर आपने म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक साथ लिख दिया है, वो नहीं करना है. आई विल रिपीट माई सेल्फ, हड़बड़ी में यू पीपल, क्योंकि ये 15 मार्कर क्वेश्चन है तो ये 10th क्वेश्चन के बाद होगा. यूजुअली सम स्टूडेंट्स अटेम्प्ट द 15 मार्कर क्वेश्चंस बाद में, और जब टाइम अप होने लगता है तो दे विल मेक अ खिचड़ी ऑफ देयर होल आंसर. प्लीज डोंट डू दैट. सारे पार्ट्स को अलग अलग सेपरेटली एड्रेस करिए, जहां पे हम सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इंक्लूडिंग LOC के बारे में बात करेंगे, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी एड्रेस कर दिया था. तो इसको हम स्किप करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी इसमें बढ़ेंगे, क्योंकि ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बात किया है कि थ्रेट क्या है ना.
फिर we'll move to the India-Bangladesh border. Now, considering the fall of Sheikh Hasina government in Bangladesh, रिमेंबर कि इंडिया बांग्लादेश का रिलेशनशिप फिर से न्यूज में है. तो इन योर इंटरनल सिक्योरिटी एंड इन योर इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया बांग्लादेश के भी बारे में बी वेरी वेल रेड अबाउट द रिलेशन, ओके, बिकॉज इट इज इन द न्यूज. अब इसमें थ्रेट क्या है? इलीगल इमिग्रेशन है. वी नो इट, वी हैव रेड इट इन द न्यूज, वी सी इट इन द न्यूज ऑल द टाइम. कैटल स्मगलिंग, ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म. क्या डिटेल्स हैं इनके, किस किस स्टेट में रैम्पेंट है, उससे इशू क्या हो रहा है, मेंशन इट, ओके. एंड देन द थर्ड कंट्री, okay, there are border killing and clashes also. And then the third country is Myanmar. उसमें we will talk about the insurgency and armed struggling, drug trafficking. अच्छा, अब दो चीजें हैं, एक गोल्डन ट्रायंगल है और एक गोल्डन क्रीसेंट है. इन दोनों टर्म्स को हमेशा याद रखिएगा ड्रग ट्रैफिकिंग के कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली जब इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो रही है. इनमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो भी याद रखिएगा. एंड इफ यू कुड जस्ट ड्रॉ अ मैप, एक जगह पे क्रीसेंट एंड एक जगह पे ट्रायंगल, दैट विल ऑल्सो हेल्पफुल, एंड लेबल इट, तो वो भी आपका हेल्पफुल हो जाएगा. तो यहाँ म्यांमार के केस में इट इज द गोल्डन ट्रायंगल, जहां से ड्रग ट्रैफिकिंग का इशू हो रहा है. देन एथनिक रेफ्यूजी इन्फ्लक्स है, अनफेंस्ड टेरेन है, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स एंड एम्बुशेस है. यू नो, दीज आर द थ्रेट्स जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर को फेस करना पड़ रहा है. और अब रोल आ जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस का. Now, be a little smart about which security forces you are attempting. अब देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस काफी सारी हैं कंट्री में, है ना, बट अंडरस्टैंड दैट इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू मेंशन दोज सिक्योरिटी फोर्सेस. सी, इंडियन आर्मी विल ऑलवेज बी देयर. इंडियन आर्मी तो आपकी टॉप पे हमेशा रहेगी, बिकॉज you know, irrespective of the country, they have their roles in every chunk and border of the country. Okay, so Indian Army के अलावा mention those security forces जो specifically उस border पे काम करती हैं. If you mention something other than those security forces जिनका उस border area में कोई relevancy नहीं है, और आप एक general सा उनका कुछ function दे दोगे, that won't fetch you marks, because ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो में बच्चे वो करते हैं, बट डोंट डू दैट. मेंशन द सिक्योरिटी फोर्सेस भी आपको अलग से मत देखिए. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को एक अलग क्वेश्चन के जैसा मत देखिए. सी इट एज related to the first part of the question, wherein it is talking about the three countries, Pakistan, Bangladesh and Myanmar. So in borders के around में the security forces which have been deployed, you have to mention them and talk about them. So what are those? They are the BSF, they are the Assam Rifles, they are the Coast Guard and intelligence agencies, okay, and then there is NIA. ये दोनों आप बाद में mention करोगे, पहले आप इन दोनों को मेंशन करोगे, बिकॉज इनका काम ही है उस बॉर्डर पे सिक्योरिटी मेंटेन करना. तो आफ्टर इंडियन आर्मी आपका ये दो मेंशन पहले होना चाहिए. एंड इवन इफ यू मिस आउट ऑन एनी वन ऑफ दीज, इट्स ओके, बट इसको मेंशन करने की कोशिश करिए. ट्राई, दे हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले. अगेन, यू कैन नॉट इग्नोर देयर रोल, बट इन तीनों का डायरेक्ट बिल्कुल बॉर्डर से रिलेशन है, तो यू हैव टू मेंशन देम. And then mention them as in they are monitoring the riverine and maritime entities. And then you know, NIA के बारे में बताइए कि कैसे वो टेरर मॉड्यूल्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, फॉरेन लिंक्स, क्रॉस बॉर्डर टेरर फाइनेंस, स्लीपर सेल नेटवर्क्स को क्रैक करने की कोशिश करते हैं. ये आप इनके बाद आप इनको मेंशन करिए. ओके, नाउ व्हाट आर द इनिशिएटिव्स that have been taken by them to strengthen border security? इनके through initiatives क्या लिया गया है? There is a comprehensive integrated border management system, smart fencing, sensors, radars along Indo-Pak and Indo-Bangla borders. Editorials आते हैं इस पे, you must be well aware, आपको ये पता होना चाहिए, well read about these things, okay? देन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम है, फेंस मॉडर्नाइजेशन पे काम है, जॉइंट एक्सरसाइज एंड कोऑर्डिनेशन है, यूज ऑफ ड्रोन्स एंड नाइट विजन है. इनिशिएटिव्स एंड द थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग डन. एंड देन कंक्लूड. यू कैन ऑल्सो गिव अ वे फॉरवर्ड, बट आई थिंक यहाँ पे वे फॉरवर्ड की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप अपने आप उनको बता रहे हो कि हम इनिशिएटिव्स क्या ले रहे हैं, है ना. वी आर टेलिंग यू कि इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है. So you can just simply conclude this answer, summarize करके, okay? Then moving ahead to the next question.
For effective border area management, discuss the steps required to be taken to deny local support to militants and also suggest ways to manage favorable perception among locals. Okay, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा आपका यहाँ पे डीप नॉलेज आपको कितनी है, आपको ये तो मालूम है कि कश्मीर में मिलिटेंट का इशू है, यू नो कि इस कंट्री के साथ बॉर्डर इशू है, बट उस इशू को क्या बच्चा थोड़ा सा न्यूज़पेपर और पढ़ के, थोड़ा करंट अफेयर्स का नॉलेज अंदर से जाके क्या और बच्चा पढ़ रहा है, ये उस चीज़ की टेस्टिंग है ना. सो दिस इज अ लिटिल ट्रिकी, नहीं बोलूंगी मैं, थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए इस आंसर को, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. ओके, नाउ सो border regions in India, especially Jammu Kashmir, Northeast, parts of Punjab are often susceptible to militant infiltration. पहले तो आपको बताना होगा कि किस किस जगह पे हमारे कंट्री में militant infiltration देखी जा रही है. And local collaboration owing to geographical remoteness, underdevelopment, identity-based alienation and cross-border influence. Okay. Now understand that कि आपको पहले बताना है कि किन, फर्स्ट यू हैव टू मेंशन द प्लेसेस जहाँ ये इशू है, फिर आपको बताना है कि वाई यहाँ पे है ना, और क्यों है ये, अगर है तो क्यों है, लोकल कोलैबोरेशन क्यों हो रहा है, क्यों मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं लोकल लोग, है ना. ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट होना चाहिए. नाउ अब स्टेप्स क्या चाहिए टू डिनाई लोकल सपोर्ट्स टू मिलिटेंट्स, मेजर और उसका डिटेल्स. पहले एक इनहैंस्ड इंटेलिजेंस नेटवर्क आपको बनाना होगा. ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन, go and read about this. You can substitute, you can use this in your other internal security के questions में भी, ठीक है. टारगेटेड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स चाहिए आपको, जैसे कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ओके, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, इन सारे इश्यूज को आपको एड्रेस करना होगा. कम्युनिटी पुलिसिंग की ज़रूरत है, कैसे आप लोकल्स को इंगेज करिए विलेज डिफेंस कम्युनिटीज़ के थ्रू, है ना. प्रोएक्टिव पुलिस आउटरीच चाहिए. कर्बिंग रैडिकल प्रोपेगेंडा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड रेगुलेशन, स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शंस अगेंस्ट कोलैबोरेटर्स, ठीक है. यूएपीए को इन्फोर्स करने का ज़रूरत है, बायोमेट्रिक आधार लिंक डॉक्यूमेंटेशन करने का ज़रूरत है. दीज आर द वेज यू कैन avoid deny local support to militants. And then ways to build favorable perception. अच्छा, बात ये है कि when you tell the locals that जो भी participate, जो भी इस तरह के militant activities को support कर रहे हैं, why do they do that, है ना. why such dishonesty towards their own country? why do they feel कि उनके पास यही एक option है, that is to betray their own country? क्योंकि they are given certain incentives, they are brainwashed into believing that this is what will lead to their betterment, है ना. तो it is important कि आप वो चीज as a country, as a government खुद उन locals के लिए करो, ताकि वो उनसे brain wash होने से बच सकें. And how do you do that? You do that by building favorable perception among the locals. Then there is, so how do you do? Do you do that by civil military engagement, है ना, मेडिकल कैंप, स्पोर्ट्स इवेंट्स के थ्रू गुडविल क्रिएट करने की कोशिश करनी होती है लोकल्स में. देन कल्चरल एंड रिलीजियस सेंसिटिविटी, यू नो, कल्चरल एंड रिलीजियस सेंसिटिविटी को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए उस एरिया के. ग्रीवांस रिड्रेस मैकेनिज्म शुड बी इन प्लेस. स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, बॉर्डर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूजन. इनमें एक एक लाइन आप बताओ कि कैसे ये करना चाहिए. साइटिंग फ्यू एग्जाम्पल्स. आपके गवर्नेंस के सब्जेक्ट में अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा स्टेप है, एनी इनिशिएटिव दैट द गवर्नमेंट इज टेकन विच इज ऑल्सो वर्किंग टू, यू नो, काइंड ऑफ बिल्ड द लोकल पॉपुलेशन ट्रस्ट इन द बॉर्डर एरिया कंट्रीज और एरियाज जहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटीज हैं, यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट.
ठीक है, एंड देन यू विल कंक्लूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट्स is only one of the several security challenges facing the policing of border in northeast India. अब यहाँ पे it's a new different type of question जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट का बात है, इंसर्जेंसी की बात हो रही है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, एंड हमें एग्जामिन करना है द वेरियस चैलेंजेस करेंटली एमिनेटिंग अक्रॉस द इंडिया म्यांमार बॉर्डर, also discuss steps to counter the challenges. 2019 का क्वेश्चन है, it's a big question, it's again a 15 marker question, 20 to 50 words. There's a lot to cover in this question, and again you have to keep the word limit in mind, है ना. नॉर्थ ईस्ट में के भी बारे में बात करना है, इंडिया म्यांमार के भी बारे में बात करना है, और स्टेप्स टू काउंटर कैसे करना है इस बारे में भी बात करना है. नो, इंडिया म्यांमार के बॉर्डर के बारे में कितना है किलोमीटर, ठीक है, और अगर ये नहीं याद हो रहा तो एटलीस्ट आप ये याद रखिए कि कौन से वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिसके साथ इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है, पास में जो टच करते हैं किन स्टेट्स को. क्या दिक्कत है कि वो पोरस हैं, अंडर पुलिस्ड हैं, है ना, एंड दे रन थ्रू हिली फॉरेस्टेड और एथनिकली सेंसिटिव टेरेन. फ्री मूवमेंट रिजीम के बारे में भी आप बात कर सकते हैं. इन दोनों में से या तो इस वाले पार्ट को यूज करके आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करिए, या इस वाले पार्ट को लेके इंट्रोडक्शन. फ्री मूवमेंट रिजीम वाज इन द न्यूज आल्सो, सो इट मेक्स सेंस दैट यू यूज दैट इन योर आंसर. नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस अलोंग द इंडिया म्यांमार बॉर्डर? ओके, दीज आर द चैलेंजेस. हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी एड्रेस किया था उसको कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है. सेकेंड पार्ट है कि उसको हम काउंटर कैसे करेंगे. अब काउंटर करने में देयर आर डिफरेंट वेज. सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस मेजर से काउंटर कर सकते हैं. इसमें से कोई एक दो आप उठाइए एंड मेंशन करिए कि कैसे हम सिक्योरिटी और सर्वेलेंस मेजर से. दिस शुड बी योर हेडिंग एंड यू शुड justify this heading or explain this heading with 2 or 3 subheadings, not more than that. This is a framework. Okay, इसमें से आप कोई भी 2 से 3 टॉपिक उठाइए और उसको अपने आंसर में लिखिए. बट अगेन आपको इनमें से एक दो एटलीस्ट याद रहना चाहिए. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू कर सकते हैं. ये हम कैसे कर सकते हैं वो भी हमने यहाँ मेंशन कर दिया है. देन देयर इज सोशल एंड डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स लाइक ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, कम्युनिटी एंगेजमेंट, है ना, एंड देन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद म्यांमार. ठीक है, यू कैन मेंशन देम कि इन सारे इनिशिएटिव्स के थ्रू. तो हमने अपने आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड किया. बोला नहीं था उन्होंने डिवाइड करने, बट हमने किया है. क्यों? क्योंकि हमें अपने एग्जामिनर को बताना है कि हमें अलग अलग फील्ड, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर फील्ड नहीं पूछा है, तो नाउ इट बिकम्स, एंड सिंस इट इज अ होलिस्टिक क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग यू, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एग्जामिनर को बताएं कि सी मुझे डिफरेंट एरियाज में मालूम है कि क्या किया जा सकता है. तो आप अलग अलग एरियाज को अलग अलग तरीके से अलग अलग मेंशन करिए, उनके अंडर जो काम हो रहा है उसको मेंशन करिए. गिव्स अ वेरी क्लीन लुक टू योर आंसर, है ना, अच्छा लगेगा. आप भी किसी का आंसर इस तरह से पढ़िएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा. तो मेक द एग्जामिनर फील हैप्पी बाय सीइंग योर आंसर कि अच्छा इस बच्चे ने अच्छा आंसर लिखा है. फोर्स हिम और हर टू गिव यू मार्क्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉर्थ ईस्ट, अगेन नॉर्थ ईस्ट रीजन पे है जहां पे इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया हैज बीन इन्फेस्टेड विद इंसर्जेंसी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एनालाइज द मेजर रीजंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी इन द रीजन. आप इस क्वेश्चन को यू कैन स्टार्ट विथ टॉकिंग अबाउट कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से स्टेट हैं, एंड यू कैन मेंशन 2 or 3 इंसर्जेंट ग्रुप्स या इंसर्जेंट इश्यूज जो स्टेट में हुए हैं. दैट इज हाउ योर इंट्रोडक्शन शुड गो अबाउट. नाउ लुक एट दिस मैप. ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आंसर में ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने का. मैप के थ्रू अगर आप उनको एक्सप्लेन कर दे रहे हो कि इस एरिया में ये इशू है, इस एरिया में ये इंसर्जेंसी है, यू विल फेच मार्क्स, है ना. तो a very good way to go about answering questions of internal security through maps.
याद कर लीजिए, मल्टीपल टाइम्स इसको। अब देखिए, दिस इज नॉट समथिंग, क्यों मैं बोल रही हूँ इस मैप को रिमेंबर करने के लिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये आपको बस एक ही क्वेश्चन में काम, इस क्वेश्चन में पूछ दिया है तो अब इस क्वेश्चन में ही मैप काम आएगा, ऐसा नहीं है। इफ यू रिमेंबर दिस मैप, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम्स, बॉर्डर कंट्री का प्रॉब्लम्स, बॉर्डर स्टेट्स के साथ प्रॉब्लम, इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, इंसर्जेंसी प्रॉब्लम्स, आपको हर जगह ये मैप यूज हो सकता है। सो याद कर लीजिए, ड्रॉ इट मल्टीपल टाइम्स सो दैट इट गेट्स मेमोराइज्ड एंड एच्ड इन योर ब्रेन. Now, what are the major reasons for survival of armed insurgency in the Northeast? Going to the body part of the question, these are the major reasons. Okay. Ethnic diversity and identity assertion. I think that is the first thing जो हर बच्चे को strike करेगा, है ना? Then there is a perceived political neglect, underdevelopment, perceived political neglect. Political neglect है नहीं. There's a perception that the politicians are neglecting us. Okay. Underdeveloped and unemployment, difficult terrain and geography, cross-border support and safe havens, weak border management regime, delayed and partial peace accord, socio-cultural disconnect, political patronage and corruption. 9 points hai. Mention any 5 or 6 of them you feel is the first and most important thing to mention. And then moving ahead with the way forward of this question. How do you tackle insurgency in the Northeast India? पहले भी हमने देखा है ऊपर के क्वेश्चन में, पॉलिटिकल डायलॉग, इक्विटेबल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर मैनेजमेंट, सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीजें मेंशन इट. आपको ऐसे भी आपके 1 पेजर नोट्स में ये सारी चीजें होनी चाहिए, बस उनको याद रखिए और एग्जाम में उसको मेमोराइज अच्छे से करके जाके लिख के आ जाइए. ओके. Yes, and also give examples, Bodo Accord, है ना? Okay, so this ends our today's discussion of border issues in the internal security part. Next lecture में हम दूसरे issues पे जाएंगे. I am sure there are few more questions जो कि भी इस border management वाले area से related होगा. Now, I have discussed few of them here. Now it is your job to go and have a look at those questions also. इन frameworks को दिमाग में रखते हुए try to attempt those questions. But first, इन questions को attempt करिए. Make a routine कि आज हम इतने PYQs अटेम्प्ट करेंगे, 3, 4, 5 whatever, जो भी आपका कंफर्ट लेवल है, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर इन योर प्रिपरेशन स्टेज. अगर आप 2025 का मेंस लिख रहे हो तब तो आपको डेली आंसर राइटिंग करना है. अगर आप अगले 2026 का मेंस लिख रहे हो, देन अभी से डेली, इफ नॉट डेली, एटलीस्ट वीक में 3 दिन मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग आंसर्स. 2-3 ही PYQ अटेम्प्ट करिए आप, बट अटेम्प्ट करिए. ओके. दैट विल रिस्ट्रिक्ट, आपको धीरे धीरे फील होने लगेगा कि आपका खुद हाथ रुक रहा है. 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन से ज्यादा चला जा रहा है तो आपको खुद फील हो रहा है कि नहीं, लंबा जा रहा है. दैट इज हाउ यू get through the questions and keep with the word limit in mind by practicing. So please go through this questions and the answers which have been given here. See the border management wala topic, read through it. Your smash mains ke X note se get hold of the static part and the current part that are sufficient to answer questions like this, and go through the other PYQs jo is topic ko cover karte hain. Okay, so we will end our session here today. Next class में हम internal security के अंदर ही दूसरी major headings को we will tackle. Okay, so thank you everyone.